میری آپ کی بھرپور تالیوں میں پاکستان کا فخر، عالم اسلام کا فخر، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سے بڑی مشکل میں آ جاتا ہے بات کرنے والا جب اس کی اتنی تعریف کی جائے، کیونکہ جو انسان کا ایک ریئل سیلف ہے نا، وہ ہمیشہ اس کے پروجیکٹڈ سیلف سے چھوٹا ہوتا ہے۔ تو جو بہت تعریف ہو تو وہ ایک بہت ہی احتمال ہوتا ہے اس بات کا کہ لوگوں میں مایوسی ہوگی، کیونکہ ہم جو بھی ہوں وہ بتائے گئے سے ہم چھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ تو میں بس اس وقت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بالکل انفارملی، آپ میں سے کتنے لوگ ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات اچھے نہیں؟ ہاتھ کھڑا کرتے ہو تو بعض لوگوں نے دونوں ہاتھ بھی کھڑے کیے، اور اس کا کیا ہوگا؟ جی بہت شکریہ، آپ کسی کا نہیں، سائٹ پر ہو جائیں۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے ہی حالات ٹھیک ہیں۔ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، میرے خاندان کے کچھ لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں، میرا بیٹا اور بہو، ایک میری بیٹی ہے، آدمیوں کا سامنا پڑ رہا ہے، نہیں تو آپ سائٹ سے ہو کے دیکھ لیں نا، اس طرف جا کے دیکھ لیں۔ اور پھر میں اس کام کے سلسلے میں بھی جاتا رہتا ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پریشانیوں کی نوعیت مختلف ہوگی، لیکن پوری دنیا پریشان۔ جو لوگ ولایت میں رہتے ہیں انگلینڈ میں، ہر نوجوان کہتا ہے میں نے یہاں سے چلے جانا ہے، آسٹریلیا چلے جانا ہے یا امریکہ چلے جانا ہے۔ جو امریکہ رہتا ہے وہ کہتا ہے میں نے یہاں سے کینیڈا چلے جانا ہے۔ جو کینیڈا رہتا ہے وہ کہتا ہے میں نے عرب ملکوں میں چلا جانا ہے، یہاں ٹیکس بہت دینا۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہو کہ جہاں سے نوجوان سارے جا رہے ہیں تو وہاں کی شاید معاشی حالات ہم سے بہت بہتر ہیں۔ ہاں، یہ بات درست ہو سکتی ہے، لیکن انسان جو ہے وہ صرف ایک فزیکیلٹی نہیں ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کو پہننے کو اچھے کپڑے مل جائیں، کھانے کو اچھا مل جائے، سواری اچھی مل جائے تو اس کا مطلب ہے اس کی زندگی بڑی کامیاب ہے۔ اس سے تو انسان ایک بکری سے یا ایک بچڑے سے زیادہ سپیریئر نہیں بنتا، کیونکہ بچڑا بھی اپنی دیکھ بھال اور بکری بھی اپنی دیکھ بھال بالکل ٹھیک طریقے سے کر لیتی ہے، اپنے بچوں کو پال لیتی ہے اور اپنی طبعی موت کر کے دنیا سے چلی جاتی ہے۔ ہمیں بحیثیت انسان ہماری ضرورتیں مختلف ہیں اور ہماری پھر ذمہ داریاں بھی مختلف ہیں۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اس وقت پوری انسانیت بہت تکلیف، نہیں میں نہیں ہٹوں گا، بہت زیادہ اذیت ہے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ مغرب کی سوسائٹی کو ہم سے زیادہ ہیں، ہم ان سے کم نہیں ہیں۔ ہم نے بھی اپنے ان کو انوائٹ کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ جو اپنے ہاتھ میں ہم نے آپ رات میں بھی پکڑا ہوا ہے، باقی لوگوں نے بھی ہاتھ میں جو ہم نے مقدس، جو ہمارے دوست جو ہیں سلمان آصف صدیقی صاحب کہتے ہیں جو دل کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا جو ہمارے ہاتھ میں ہر وقت موجود رہتا ہے، اس کے ذریعے سے دنیا کا ساری دنیا کو کنیکٹ کر دیا گیا ہے ان خیالات کے ساتھ کہ جو خیالات ہمیں پہنچائے جانا ان کا پرپس ہے۔ میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ اس میں جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، جو کچھ بتایا جا رہا ہے، یہ آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ ایک خاص قسم کے فلسفی کو، ایک خاص نظریے کو ہماری روحوں کے اندر اور ہمارے جینیٹکس کے اندر داخل کرنے کے لیے ڈالا جا رہا ہے۔ آپ ایمانداری سے مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا یہ جو پوسٹل سسٹم ہے، اگر آپ نے کسی کو خط لکھنا ہو تو ٹکٹ کتنے کی لگتی ہے؟ کسی کے علم میں ہے؟ 30 روپے کا ایک کاغذ۔ لیکن آپ اپنی ہمشیرہ سے، اپنے بھائی سے امریکہ کے اندر 2 گھنٹے ویڈیو کال مفت کرتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ اس کے پیسے کون دیتے ہیں؟ جو آپ کی ای میل آتی ہے اس کے پیسے کون دیتا ہے؟ جو آپ فوٹو بھیجتے ہیں اس کے پیسے کون دے رہا ہے؟ یہ آپ کو مفت کیوں دے رہے ہیں؟ یہ آپ کو مفت نہیں دے رہے۔ ایک انگریزی کا فکرہ ہے کہ when you are not paying for a product, then you are the product۔ میں اس وقت پوری دنیا کو اور میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ایک خاص قسم کے تارے عنکبوت کے اندر باندھ دیا گیا، اسی لیے اس کا نام ویب ہے، اسی لیے اس کو ویب سائٹس کہتے ہیں۔ اور ویب کے تارے عنکبوت مکڑی کا جالا ہے، اس سارے کے ذریعے سے انسانوں کو باندھ دیا۔ آپ کا کیا اسم شریف ہے؟ ندیم الحق صاحب کے نام سے اور جاوید اقبال کے نام سے گوگل کے پاس ایک فائل موجود ہے۔ اس فائل میں اگر آپ کو میرا یقین نہیں آتا اور آپ پاس آئی فون ہے تو آپ اس کے اوپر ایک ابھی سیٹنگ میں جا کر کچھ ڈاؤن لوڈ کر کچھ آن کر سکتے ہیں۔ ہر مہینے کی 30 تاریخ کو آپ کے پاس PDF فارم میں آ جائے گا کہ آپ 7:18 پر اس مارکی میں تھے، 10 بجے فلاں جگہ آئس کریم کی دکان پہ رکے تھے اور فلاں جگہ آپ نے ٹرین کے ذریعے سے سفر کیا۔ یہ آپ لے سکتے ہیں بغیر کسی کو آپ سے۔ بیٹھ جا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے امریکہ میں بیٹھا ہوا اور کہیں اور بیٹھا ہوا اور خاص طور پر اسرائیل میں بیٹھا ہوا بندہ، اس کو پتہ نہیں ہے کہ جاوید اقبال کہاں ہے اور شہزاد صاحب کہاں ہیں اور عرفان بٹ کہاں ہے؟
मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि इंसानियत को बहुत बुरी तरह जकड़ दिया गया है और हम सब का डाटा जो है वो मौजूद है। जब इंसान इस दुनिया में आया था तो इंसान का जब पेट का खाने पीने का मसला हल हुआ तो इंसान ने एक बुनियादी सवाल, उसके जहन में आफाकी सवाल आया कि मेरा पैदा करने वाला कौन है, मैं मरूंगा तो मैं क्या करूंगा, ये आगे मरने के बाद भी कुछ होगा कि नहीं होगा, ज़लज़ले कहाँ से आते हैं, जमीन के नीचे क्या है, जमीन के ऊपर क्या। इस तरह के जब बाकी सवाल आए तो अल्लाह ताला ने बाय डिफॉल्ट इंसान की फितरत के अंदर ये डाल दिया कि उसके ज़हन में आया कि मेरा एक पैदा करने वाला है। लिहाजा वो सारे हिस्टोरियंस जिन्होंने हिस्ट्री को ट्रेस किया है हजारों सालों में, उन्होंने ये कहा है कि जब इब्तदाई इंसान जो थे ना इस तारीख के उसमें, तो एक खुदा को मानते थे, मे भी उसका नाम डिफरेंट हो। और आप हैरान होंगे कि मैं क्या करूं, ये मैं एक डिवाइन, यहाँ से यहाँ जाइए, दिक्कत हो रही है कि मैं क्या करूं इस मसले के दौरान, इसका जवाब मुझे कौन देगा। सवाए तकरीबन 700-800 साल से पहले इंसानियत चाहे जिस स्कूल ऑफ थॉट से भी ताल्लुक रखती हो, चाहे वो कदीम मिस्री हो, यूनानी हो, हमारी ये हिंदुस्तान के करीब की यानी वो हो सारी, सामी हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, आतिश परस्त हो, सबके जहन में ये था और सबके अंदर डिफॉल्ट में ये था कि एक पैदा करने वाला है, वो हमें बताएगा कि मैं अपनी जिंदगी कैसे। उसकी माइनर डिटेल्स डिफरेंट हो सकती हैं। आप हैरान होंगे कि 700-800 साल पहले ही इंसान को उस बड़ी छतरी से निकालने के लिए एक आइडिया क्रिएट किया गया और वही आइडिया है जिसकी वजह से मैंने आपको अर्ज किया है कि पूरी इंसानियत मुसीबत में फंस चुकी है। और वो आइडिया इतना ज्यादा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रोजी गॉगली था, इतना ज्यादा दिल नशीन था कि हम जैसे लोग भी उसमें सब हो गए। उस आइडिया का नाम था इंसानियत और इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट्स। और हमें लग रहा था कि ह्यूमन राइट्स की बात करना कितनी जबरदस्त बात है, तो जो आप कहना चाहें वो कहें, जो आप पहनना चाहें वो पहनें, जिस तरह की जगह पर जाना चाहें वहाँ जाएं, जो ज़बान बोलना चाहें वो बोलें। ठीक है, ये आप मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान को धोखा देने, इंसान को आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक करते हुए ये कहा गया। ये बात बड़ी खूबसूरत थी, क्योंकि जो मैं कहना चाहूँ मैं कहूँ, मुझे कोई ना रोक सके। क्या 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 बात है इंसानी हुकूक, मैं जो पहनना चाहूँ मैं पहन लूँ। लेकिन ये बात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। मैं जैसा मर्जी हुलिया इख्तियार करूँ, मैं जैसा मर्जी लिबास पहनूँ, मैं एक खूबसूरत लड़की पूरे बालों को टेंड करा दे, एक आम आदमी, हसीन आदमी अपने पूरे जिस्म पर नीले टैटू करवा ले, एक लड़की अपनी जबान के अंदर प्यार फुला करके बालियां बांध ले, एक लड़का बालियां पहनना शुरू कर दे, अजीब से बाल बनाने शुरू कर दे। ये इंसानी हुकूक है। आप सिगरेट पीना शुरू कर दीजिए, आप चरस पीना शुरू कर दीजिए, शराब पीना शुरू कर दीजिए, इंसानी हुकूक है। आप कौन होते हैं कुछ कहने वाले? हाँ, कानून के आप दायरे में रहते रहें। लेकिन ये बढ़ता बढ़ता यहाँ तक आ गया कि अब बाकायदा अगर अभी आप देखें तो वो लोग जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी और इन चीज़ों की बुनियाद रखी है, वो ये कहते हैं कि आज से लेकर पहले तक चीज़ें तरक्की करती थी। लोहा तरक्की किया और उड़ने लगे, लोहा तरक्की किया और समंदर पर तैरने लगे, प्लास्टिक में तरक्की की और ये बन गया। अब इंसान की तरक्की करने का टाइम आ गया है और इंसान की तरक्की ये है कि इंसान अब खुदा बनने लगे। नकले कुफ्र नवाज़, ये बात आप अभी नेट पे सर्च कर लीजिए। उनका ये ख्याल है कि अब इंसान अपग्रेड हो जाता है और वो खुदा के तसर्रुफ में आने वाला है। और इसके अंदर जो एक आखिरी कील जिसको कहते हैं, और हम सबको इसकी कुछ खबर नहीं है, अल्लाह करे हमें अकल में आए, वो ये है कि माज़अल्लाह पैदा करने वाला कौन है ये बताए कि मैं कौन से कपड़े पहनूं। पैदा करने वाला कौन है, उसकी क्या जरूरत है, ये बताए कि मैं किससे शादी करूं। अगर एक मर्द से शादी करना चाहे, ये इंसानी हुकूक है, ये इख्तियार पैदा करने वाले को नहीं है कि एक लड़की से शादी करना चाहे, ये इख्तियार नहीं है उसको। तो बात अब उससे ज्यादा बढ़ गई कि एक लड़का जो पैदा हुआ है जिसका नाम जावेद इकबाल है,
وہ अगर ये कहे कि मेरा नाम खालदा परवीन है, आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले? माज़ अल्लाह, अल्लाह भी कौन है कहने वाला कि नहीं तुम जावेद। ये बातें मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं। आप कहीं बाहर जाके कह के देखें कि ये शख्स जिसकी दाढ़ी है, जिसकी मूछें हैं, ये कैसे कह रहा है कि मैं औरत हूं, आपको जेल में पकड़ के ले जाए। अगर आप पाकिस्तानी हिंदुस्तानी हैं, आपका वीजा कैंसिल हो जाए, आपके ऊपर हेट स्पीच का लेबल लग जाएगा, आपको बात नहीं करने दी जाएगी, आपके पासपोर्ट के ऊपर बैन कर दिया जाएगा कि अच्छा आप किसी जगह पे नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई एक आपके पास जॉब लेने आया और उसने ये कहा कि मेरा नाम, मैं आया और आगे कहा कि देखिए मेरा नाम परवीन अख्तर है, और मैंने आपके कहा परवीन अख्तर, ये कैसे? वो मुझे अदालत में ले जा सकता है कि इसने मुझे जेंडर की बुनियाद के ऊपर डिस्क्रिमिनेट किया। मेरे दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। मैं आपको अपनी बेटी की बात बताता हूँ जो अस्पताल में काम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हिजाब में हॉस्पिटल में काम करती है। जब उसको कहा गया, अल्हम्दुलिल्लाह, जब उसको ये कहा गया कि यहाँ रेनबो का बैच लगाओ, वो जो LGBT का, तो उसने कहा ये मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे नबी ने उसको मना किया और मैं नहीं लगाऊंगी, तो उसने नहीं लगाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो और भी हमारी बेटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से करती हैं। तो उसने मुझे कहा कि अबू, हमें ट्रेनिंग दी गई कि जब कोई आए, जैसे आप तशरीफ लाए तो मैं आपका नाम पूछूंगा और लिख दूंगा मेल। वो हमारी बहन तशरीफ लाए मुझे दिखाने के लिए एज अ डॉक्टर, तो मैं उनका नाम लिख दूंगा और लिख दूंगा फीमेल। अब आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको पूछना पड़ेगा कि मैं आपको ही कहूँ या शी, शुड आई कॉल यू ही और शी। और अगर आप कहें कि मुझे शी कहो और हमारी बहन कहे मुझे ही कहो, तो मुझे उनके औरतों वाले सारी बायोलॉजी के बावजूद और आपके मर्दों की बायोलॉजी के बावजूद आपको शी और उन्हें ही लिखना पड़ेगा। और इससे बड़ा लतीफा ये हुआ, लतीफा क्या, एक हकीका हुआ कि मेरी बेटी ने मुझे कहा कि इसी तरह मैं पूछती थी, मैंने इससे पूछा व्हाट वुड यू लाइक टू बी कॉल्ड, ही और शी। वो आगे से कहने लगी, आई डोंट वांट टू बी इन दिस मेस, कॉल मी इट। और इसी का नाम LGBTQ है, क्यों मुझे भी पता नहीं है कि मैं ये। मेरे दोस्तों, ये एंटी डिवाइन मूवमेंट है, ये एंटी डिवाइन मूवमेंट है। कुरान का एक सफा जला, आप देखा जड़ावाला में क्या हुआ। और पाकिस्तान के मीडिया में आया कि एक बड़े सेलिब्रिटी के माँ बाप, सेलिब्रिटी बेटे ने एक और लड़के से शादी कर ली। हमें से किसी के कानों में जूं गिरेंगी? आपको अंदाजा नहीं हुआ कि हमें कितना मेंटली मिलाइन कर दिया। आप पाकिस्तान का कोई ड्रामा देखें, हर ड्रामे में अचानक ये ट्रांसजेंडर कहां से आ गए? अचानक फिल्मों के अंदर एक ट्रांसजेंडर किरदार कहां से आ गए? मेरे दोस्तों, ये इंटरनेशनल है और इससे हम नहीं, वो सारे लोग भी परेशान हैं और पूरी की पूरी इंसानियत एक मुसीबत में आने वाली है। इसलिए कि ये चैट GPT और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये तमाम चीजों के बनाने वाले फिलोसोफर नहीं है, ये बिजनेसमैन है जो प्रॉफिट को देखेंगे। और वो तभी मुमकिन है कि एक बड़ी छतरी से अपनी छतरी में कैद करने से पहले लोगों को कहा जाए कि हम तुम्हें आजाद कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला की उस डिवाइन छतरी में से निकालने के लिए ह्यूमन राइट्स का बहाना और ड्रामा किया गया, ताकि अब उनको एल्गोरिदम्स के अंदर ऐड कर लिया जाए, एल्गोरिदम के जरिए उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। आप मुल्तान में थे, मैं मुल्तान में यहाँ से स्कूल में यही दाखिल हुआ था। अब मैं आपके पास आया हूँ तो मैंने गूगल मैप ऑन किया है और मैं इन गलियों में खेल के बड़ा हुआ हूँ। आपने कभी अंदाजा लगाया कि आप मुल्तान में गूगल मैप के बगैर आपने कभी नहीं जा सकते? कभी आपने ये अंदाजा लगाया? हमारी माँ, हमारी बाप दादी, हमारी ताई फूफी भट्टी में बैठ कर रोटी पकाती थी, हम खाते थे। अब आप गूगल के जरिए से फूड पांडा से अपना खाना मंगवाते हैं। आपको इस बात का अंदाजा नहीं क्या हो रहा है? कुछ अरसे के बाद एल्गोरिदम डिसाइड करेंगे कि आपने किस स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल करना है। एल्गोरिदम ये डिसाइड करेंगे कि आपने किससे शादी करनी है। और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर आपने, क्योंकि आपने अगर ये कहा कि मैंने फलां लड़की से, एक लड़के ने कहा शादी करनी है क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत है और उस लड़की को मुझसे मोहब्बत है, तो उस लड़की का और उस लड़के का पूरा एल्गोरिदम गूगल के पास मौजूद है। और उसमें देर नहीं है कि कुछ अरसे के बाद एक सॉफ्टवेयर आ जाए और वो कहे कि भाई साहब हम आपको भी जानते हैं, आपके इमोशनल रिएक्शंस को भी जानते हैं, उस लड़की को भी जानते हैं, आप शादी कर लीजिए। तो साइंटिफिक रिसर्च के उसूलों के मुताबिक 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ
हमारा एल्गोरिदम बता रहा है कि अगर आपकी कल शादी होगी तो दिसंबर की 12 तारीख को आपको तलाक हो जाएगी। और परेशानी की बात यह है कि ज्यादा इम्कान है कि 12 तारीख को तलाक हो जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, अब ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? ये आज हमारे घरों तक आ रही है। ये जो मेरी बहनें बैठी हैं, अगर आपकी 8 साल की बच्ची है और आपने उसको फ्रीली मोबाइल दिया हुआ है, मैं बहुत डर से और खौफ से मगर पूरे यकीन से आपको बताता हूं कि आपकी बच्ची ने वो तमाम चीजें देख ली हैं जिसके बारे में आप बात करना भी नहीं सोच सकते। ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बताऊंगा। आप जितने दोस्त यहाँ बैठे हैं, आप अभी अपना फेसबुक खोले, तो अब आप टीवी ऑन करेंगे तो अगर 9 बजे हैं तो सबको खबरें नजर आएंगी ना, लेकिन आप फेसबुक खोलेंगे तो आप सबको डिफरेंट स्क्रीन नजर आएगी। वो इसलिए कि आप में से हर एक के मिजाज को फेसबुक जानती है। आप 2 दफा उसमें नंगी तस्वीरें देखें, वो मजबूर कर देगा आपको नंगी तस्वीरें देखने। वो इस ह्यूमन साइकोलॉजी को जानता है। आप इसको आजमा कर देखें। आप क्या करें? मैं बात खत्म करता हूं, बातें बहुत तफसील से हैं। प्लीज मेरी बातों को संजीदगी से समझिएगा। आप आंखें बंद करके अगर अपने बच्चों को देखें, 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 8 साल के बच्चे, उनका पैटर्न क्या डेवलप हो रहा है, उनको इल्म का क्या मिल रहा है, हमारे घर में गुफ्तगू क्या हो रही है। आप पूरी ईमानदारी से बताइएगा, आखिरी दफा आपके घर में ये कब गुफ्तगू हुई थी कि बेटा आओ मैं तुम्हें हज़रत खदीजा के बारे में कुछ बताऊं। जाओ करीब से वीडियो बना के आओ। एक हाथ से इसे पकड़ो, एक हाथ से इसे पकड़ो, यहाँ से साहब थे जब उनका डेथ बेड पर थे, इनको फोकस करो। बुखार हुआ, उनका इंतकाल होने लगा, तो उन्होंने ये जो ब्लैक कोट कहा कि भाई मेरा अगर इंतकाल हो गया तो आप में से कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसको मैंने कोई कर्जा देना हो, तो मुझे बता दीजिए। तो उनके एक साथी ने कहा, जी हाँ, 3 दिरहम आपने मेरे देने थे, वो आपने नहीं लिए थे, मुझसे लेके किसी और को दिए थे। तो वो जो शख्स थे उन्होंने ऐसे आंखों में आंसू भर के कहा कि मेरे पास तो 3 दिरहम नहीं है। और अपने एक दोस्त को कहा कि भाई तुम 3 दिरहम इनको दे देना। क्या हमने अपने बच्चों को बताया कि जिस शख्स का मैं जिक्र कर रहा हूं उनका नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? क्या हमने ये बात बताई? क्या हमने बताया हज़रत फातिमा कौन है? क्या हमने बताया हज़रत आयशा कौन है? क्या हमने हज़रत अली के बारे में बताया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में बताया? आप कहेंगे सारी मजहबी बातें कर रहे हैं, चले इमाम गजाली के बारे में बताया, आइंस्टाइन के बारे में बताया, अब्दुस तारीदी के बारे में बताया। हमारे घर के अंदर जो गुफ्तगू हो रही है, माफ कीजिएगा, वो इसके थ्रू आ रही है। और हम सब बहुत खतरे में, और एक्चुअली पूरी इंसानियत खतरे में। इस सारे में बाकी इंसानियत एक तरफ खतरे में है, मैं और आप उससे 10 गुना ज्यादा खतरे में है। इसलिए कि हम सब उन तमाम लोगों को बचाने के लिए चौकीदार और सिपाही बनाकर इस दुनिया में भेजे गए हैं, इसलिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से। जैसे मेरे दोस्तों ने बताया था, अगर वो पूरी इंसानियत जलेगी तो उनको जलने पर जो तपश पहुंचेगी, अल्लाह हम सबको महफूज रखे, उससे 10 गुना 100 गुना हमें पहुंचेगी, क्योंकि हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वो उसवा मौजूद है। बदकिस्मती से हम किसी को दिखा नहीं सकते, क्योंकि हमारे जिस्मों में कहीं नजर नहीं आता, हमारे एटीट्यूड में कहीं नजर नहीं आता, हमारे रवैये में कहीं। दुनिया में कहीं 2000 लोगों का एक जगह मजमा नहीं है जिनको हम कह सकें कि ये है आइडियल इस्लाम जिसके मुताबिक हम। अच्छा, फिर ये हम समझे कि शायद ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ऐसा मुमकिन हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसा मुमकिन हुआ है। बस अबू बकर हज़रत उमर और सहाबा रिज़वान अजमईन, उसके बाद के कई सौ सालों के अंदर ऐसा मुमकिन हुआ है कि सारी की सारी ताकत, सारी की सारी जो ट्रेंड फॉलोइंग है, सारा का सारा फैशन क्या था, वो मुसलमान डिटरमिन करते। तो इस वक्त कुरान की जैसे एक आयत है, खुद को और अपनी आल को जहन्नुम की आग से बचा लें। बचाने का एक ही तरीका है, कुरान से ताल्लुक, नंबर 2, और ताल्लुक से क्या मुराद है कि कुरान को हरे रंग के कपड़े में लपेट के और खिड़की के ऊपर रख कर और हर रोज हम चूमे और चूम के वहां रख दें और अदालत में कसम खाने के लिए उसके ऊपर हाथ रखें। न, कुरान से ताल्लुक का मतलब यह है कि जब इमाम साहब तरावी में कुरान पढ़ा रहे हों तो उसका बेशतर मफहूम हमें समझ आता। मैं आपसे ये नहीं कहता हाथ खड़ा करें, लेकिन आप ईमानदारी से अपने दिल में देखिएगा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुरान को कम से कम एक मरतबा मफहूम से पढ़ा। मैं ये नहीं कहता हाथ खड़ा करें। आप हजरात, खवातीन और हजरात में से कितने लोग ऐसे हैं
जो इस बात पर घर में फसाद मचाया है कि मेरे बेटे के एफएससी में नंबर नहीं आए। इस पर मैं हाथ खड़ा करूं तो शायद कुछ हाथ खड़े हो जाए। लेकिन हम में से कितने हैं मुझको शामिल करके जिनको ये पता है कि उसके बेटे को कुरान का पता ही नहीं है और वो रात को सो सकता है, तो रात को नींद आती है। कुरान के साथ ताल्लुक जोड़ने के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ वो आज से शुरू करना पड़ेगा, कल से नहीं, आज से ही शुरू करना पड़ेगा। हर रोज 20-25 मिनट देने पड़ेंगे अपनी पूरी फैमिली के तमाम लोगों को। आपके घर में जो मुलाजिम हैं, आपके साथ जो काम कर रहे हैं, खुदा के लिए आधे घंटे के लिए बैठिए और बैठ के कुरान को मफहूम के साथ समझने का एक अमल शुरू कीजिए। 20-20 घंटे के, 35-35 घंटे के ऐसे अजीब अजीब साइंटिफिक मॉडर्न तरीकों के जरिए से उलमा ने टेक्निक्स बताई हैं जिनसे कुरानिक अरबिक आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। 20-20 घंटे के कोर्सेज हैं जिनसे आप सीख सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, खुदा के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जैसे भाई साहब ने फरमाया था, कमालुद्दीन साहब ने, पहला नाम मुझे भूल गया, तो इन्होंने जो फरमाया था वो बड़ी मेरी दिल को बात लगी और बड़ा जज़ाकल्लाहु खैर कि ये जो हम एक रिचुअलिस्टिक सेरिमोनियल हम मोहब्बत का इजहार करते हैं ना, और वो वाली रिचुअल्स को करते हैं जो कि बहुत जरूरी और बड़ी अहम है। कुरान के नबी के मिजाज को हमारे सीने के अंदर आना बड़ा जरूरी है, और वो तब होगा जब हमारे घरों में तज़किरे होंगे इस बात, जब हमारे घरों में बात होगी इस बात पर। तो मेरा ख्याल है कि मैंने एक आउटलाइन आपके सामने अर्ज की है। ये वही बात थी जो आपने फरमाई है, हमारे जनाब मोहतरम खालिद साहब ने बताई है, और बाकी दोस्तों ने, अंसारी साहब ने और हमारे बरखुरदार ये इरफान ने बताई है। मैं बात को ख़त्म करता हूँ। यस की ये जो कोशिश है, ये असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हैसियत है पूरी दुनिया के सेवियर के तौर पर, उसका लोगों को तारुफ कराना है। और उसकी ये जो सारी स्कीमें हैं, ये सारे जो उन्होंने ड्राइव्स बताई हैं, हम इनका हाथ पकड़िए। ये सिर्फ एक छोटा सा ये एक काम है, प्लीज आप याद रखिएगा, ये सिर्फ एक इसका बिस्मिल्लाह है, ये सिर्फ दरवाजे की चाबी खोलना है, ये मुकम्मल सब कुछ नहीं है, मगर ये बिस्मिल्लाह करना है कि हमारे घरों में, हमारी दुकानों में, हमारे बाजारों में, हमारे सोशल मीडिया में इसका जिक्र होना शुरू हो जाए। और इस 23 तारीख से शुरू कीजिए कि हम, अगर हमारा सोशल मीडिया है तो उसमें हम बयान करें कि भाई 23 से 32 तक हम रहमतुल आलमीन का हमला का वो जो हफ्ता है वो मनाएंगे, उस ब्लेसिंग को हम सेलिब्रेट करेंगे। हम अभी से दुकानों में लिख के अभी से लगा दें कि भाई 23 से 29 तक मेरी दुकान के ऊपर 20 से लेकर 40% तक रियायत होगी। मैं डॉक्टर हूं, मैं लगा दूं, मैं वादा करता हूं करूंगा ऐसे 23 से 29 तक मैं इतनी रियायत अपने मरीजों को करूंगा और लोगों को बताऊंगा मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे इस दिन, तो इस वाले दिन कोई रहमत थी, तो मैं ऐसा करूंगा। हम सब इसके अंदर कुछ ना कुछ करें। कोई आपसे पूछे यार तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, तो आप कहें हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है मुस्कुराना, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। कोई हमें ये करे कि तुमने यार ये तुम बड़ा अच्छा काम किया, मैं तो नबी पाक की सुन्नत इसलिए मैंने की। तो मेरे दोस्तों बातें बहुत की जा सकती हैं, मेहरबानी करके इस महफिल से उठते वक्त संजीदगी से इस बात पर गौर कीजिए कि अपना वक्त नहीं बचा। ये पूरी दुनिया का अजाब, जिस अजाब का हमने, मुझे पंजाबी में मोगा कहते हैं, या वो जो रास्ता होता है सैलाब के आने का, वो हम सब ने खोल दिया, हमारे हाथों में पकड़ा हुआ है। खुदा के लिए अपने बच्चों को इससे बचाइए। मैं तहदीस बिन नेमत के तौर पे आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मैं अपने बच्चों की तरबियत के सिलसिले में तो मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन जब मुझे अल्लाह ताला ने ग्रैंड चिल्ड्रन दिए हैं तो मेरे तीनों पोते और नवासा और पुती, वो उन्होंने टेलीफोन का एक नाम रखा है, मोबाइल का, वो नाम है नहीं। वो आपके पास आएंगे तो कहेंगे चाचा जान, आपको आपकी उम्र को देखते हुए, या दादा कहेंगे बेबी, तो आपसे वो ऐनक पकड़ेंगे, ये करेंगे। अगर आपने मोबाइल आगे कर दिया तो वो कहेंगे नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है हमने कि उन बच्चों को टीवी ना दिखाया जाए, कोशिश की है, पता नहीं कामयाब हो कि नहीं कामयाब। तो ये मेरे भाई हैं शहजाद साहब, इनको मैंने कहा है कि बहुत अरसे से मैं टीवी नहीं देख रहा। मैं टीवी देखने को मना नहीं करता, क्रिकेट देखनी है, मैच देखना है, कुछ भी देखना है, मैं उसे मना नहीं करता, लेकिन ये मरकजी काम हमारे घर का नहीं होना चाहिए। तो अभी जब एक और आज सुबह भी एक तकरीब थी तो मैंने कहा यार ये कई जगह पर मैं मुंह से निकाल बैठा हूँ, तो जो चीज मैंने मुंह से निकाली है तो अगर मैं उस पर खुद अमल नहीं करूंगा तो मैं रस्ते में को कह रहा था यार मेहरबानी करके उस टीवी को उठा के ना वहाँ किताबों की अलमारी बना दो, मेरे बहुत सारे लोग। तो आप ख़वातीन और हज़रात से भी गुजारिश है कि अपने घर के मरकजी हिस्से में से टीवी को उठा दीजिए,
खुदा के लिए घर के मरकजी हिस्से में से टीवी को उठा दीजिए। मैं ये नहीं कहता टीवी को बेच दें या कर दें। आपके घर में एक टॉयलेट होगा ना, जो जरूरत होती है तो उस कमरे में लोग जाके अपनी जरूरत पूरी कर लेते हैं। हर कमरे में तो कमोड नहीं लगा हुआ, तो हर कमरे में टीवी ना लगाइए, एक टीवी का कमरा बना दीजिए, जिसको जरूरत हो वो हस्बे हाजत वहां जाकर अपनी हाजत पूरी करे और आ जाए। उस जगह पर किताबें रखिए, उस जगह पर किताबें रखिए। मेहरबानी करके इन बातों को, खुदा के लिए इन बातों को जो मैंने अर्ज की, जो हमारे भाई ने अर्ज की, फरमाया और भाई साहब ने कहा, इन्होंने कहा, हम सब दोस्तों ने हम कर रहे हैं, हम अपना सबक दोहरा रहे हैं जैसे सर ने कहा था। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ये 4-5 काम करने के हैं, और खुदा के लिए जो मोबाइल है इसका सिर्फ इस्तेमाल 2 चीजों के लिए कीजिए, एक इंफॉर्मेशन और एक कम्युनिकेशन। मैं डॉक्टर हूं, नुस्खा लिखते मुझे ख्याल आता है कि ये खातून कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है, और जो मैं दवा लिख रहा हूं कहीं प्रेगनेंसी में नुकसान तो मैं यहां से देखता हूं, सेफ्टी इन दैट प्रेगनेंसी मुझे नजर आ जाता है, जबरदस्त। मैंने आपसे फोन पे बात करनी है, जबरदस्त। इस 2 कामों के अलावा तीसरा काम यानी एंटरटेनमेंट इससे करने का मतलब यह है कि आपने अपने दिमाग को हजरत शैतान के हवाले कर दिया। अब इंशाअल्लाह वो डिसाइड करेगा कि आपकी सोच क्या होगी। मैं बात को मर गया इस बात की दुआ के साथ कि जो कुछ मैंने कहा है अमल करने की तौफीक दे और हम सबको दे, और हम यहाँ से कुछ फैसले करते हैं और फैसला ये करके जाएं कि जिंदगी बहुत थोड़ी है, रेत की मुट्ठी की तरह है जो सरकती जा रही है, और रेत के बारे में आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये कब खत्म होगी, मगर जिंदगी के बारे में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ये कब खत्म होगी। इसमें बहुत जरूरी है कि हम मजे से जिंदगी गुजारें, हमारे पास गाड़ियां हो, हमारे पास घर हो, जो हलाल में हम जो मर्जी कमाएं, ये क्या है? क्या हो रहा है ये? ठीक है, वही है जो हमारे कुरान में कही है कि जो जन्नत की आस-पास अगर हमारी जिंदगी में कोई भी एक्ट हमें जहन्नुम की तरफ ले जा रहा है और जन्नत से दूर कर रहा है, तो चाहे हम जितने बड़े बंगलों में रहते हैं वो हमें कुछ नफा देने के नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर हम इस तरह इसको लेके, और ये जैसे मैंने कहा पहला खतरा है, बहुत बड़े और काम है करने वाले हैं, हम इसी तरह सुन्नत को अपनी जिंदगी में लेके आएंगे तो इंशाअल्लाह फिर जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस के सिपाही वाली, मैं अब आखिरी बात बताता हूँ। तबलीगी जमात में जाते थे एक जमाने में बहुत, तो वहाँ उन्होंने एक वाकया सुनाया कि एक जगह पर पूरी ट्रैफिक जो है वो बेहंगम चल रही थी, तो एक बड़ा आया ऑफिसर, DIG या पता नहीं क्या, उसने आके देखा तो ट्रैफिक बेहंगम, लोगों ने ट्रैफिक को रोको, उसने कहा नहीं, देखो कि सिपाही किधर है। तो यूं देखा तो सिपाही कोने में खड़ा ना गोलगप्पे खा रहा था। तो वो वहां गए DIG साहब, वो थप्पड़ मारते हुए सिपाही को पकड़ के चौक में ले आए और ट्रैफिक ठीक हो गई। ये जो हमें आजकल थप्पड़ पड़ रहे हैं ना, ये इसलिए पड़ रहे हैं कि इस पूरी कायनात के लिए अल्लाह ताला ने हमें सिपाही बनाकर भेजा था, इसलिए हमें कफार याशी करते हुए नजर आ रहे हैं और खुद हम थप्पड़ खाते हुए नजर आ रहे हैं। ये थप्पड़ हमें इसलिए पड़ रहे हैं कि अपने मनसब के ऊपर वापस आओ, वो जो खड़े गोलगप्पे खा रहे हो ना, उसको छोड़ के चौक में खड़े हो ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके। अल्लाह ताला हमें तौफीक। मौजूद ख़वातीन हज़रात, मैं और आप मुस्तफ़ीद हो रहे थे डॉक्टर जावेद इकबाल साहब की खूबसूरत गुफ्तगू से, जो हमें अमल पर उकसा रही थी, और उस गुफ्तगू को करने की बिल्कुल सही है। अमल की